Hi, good morning to you all. You all are welcome back to my ज्ञान गुरु चैनल ऑफ कंप्यूटर लर्निंग. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी आदमी जानते हैं कि मैं आप लोगों को घर बैठे आप लोगों के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं वीडियो प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए भेजता रहूँगा. ओके माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट माइंड whether are you studying in school or at home, no problem. You can avail the facility of school in your home. It's my responsibility for you. Okay, so मैं आप लोगों के लिए कक्षा साथ में प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक चैप्टर का एक्सरसाइज के साथ वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के समक्ष लाता रहूँगा. Okay, without wasting my time, let us move on our proposed topic, and today's topic is features of word processor or digital documentation that we studied in the previous class. पिछले कक्षा में मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाया था वो था सिर्फ हमारा रेशनलाइज सिलेबस ऑफ सीबीएसई और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का एक छोटा सा इंट्रो मैंने आप लोगों को दिया था, उसका एक परिचय मैंने आप लोगों को दिया था. तो आइए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर. Right, the features of word processor. So write about it, features of word processor. आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आप सभी आदमी जब भी इस वीडियो को देखें तो आप उसे पॉज करते हुए देखें और उसका नोटिंग करें. आई मीन उसको नोट डाउन करें अपने नोटबुक में. दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू. ये आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली होगा. मैंने आपको कहा था कि इसमें जो मैं लैंग्वेज का प्रयोग करता हूँ यह किसी किताबी लैंग्वेज नहीं है, इसलिए आप सभी आदमी को किताबी लैंग्वेज से दूर हटकर प्रायोगिक भाषा में मैं आप लोगों को ये सब नोट्स प्रिपेयर करके मैं आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ. ओके, सो फर्स्ट फीचर. नाउ कम टू द फर्स्ट फीचर, and first feature is what? Spelling and grammar. First feature is what? Spelling and grammar. Second feature is what? Autocorrect. Autocorrect, you have also seen it in your mobile phone also. Whenever you are typing there, okay, some possible words are, some probable words are also displayed above your keyboard, right? Then you can select any one of the appropriate spelling that you feel to type, that you need to type there. Okay, so next one is what? Word count. Okay, and fourth one is what? Fourth one is what? Font feature. Fourth one is what? Font feature. And fifth one is what? Fifth one is editing. Very simple. And next one is what? And next one is what? Mail merge. Oh, most important feature. This is the most important feature of word processor. If you learned mail merge, then I hope that you understood the digital documentation or word processor very effectively. Okay, now come to the point, and that point is word rare. Okay, so these are the features of your what? Word processor or digital documentation. Okay, my dear students, got it? Okay, now listen to me about it. मैंने क्या कहा कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसर, कुछ विशेषताएं हैं जो आपके सामने मैंने लिखा है. अब इन विशेषताओं को हम लोगों को बारी बारी से अध्ययन करना है. ओके, सो लेट अस मूव विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम on features. First feature, and first feature is what? First feature says spelling and grammar. Okay, what does it say? ये क्या कहता है? Okay, write about it. It rectifies or it helps to, you can say that it helps us to rectify our document. Okay,
grammarly. Okay, it helps us to rectify our document, right? वही रेक्टिफिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट का रेक्टिफिकेशन क्या होता है, आई मीन एरर फ्री, दैट इज to make it error free. Okay, rectification is what, error free. Since we know that two types, since we know that there are possibilities of two types of errors. There are possibilities of having right, two types of errors in a document. Okay, document क्लियर। मैंने क्या कहा भाई कि हमारे डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन में कितने तरह की गलती होने की संभावना है, तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में दो तरह की गलती होने की संभावना होती है। पहला है what was that, spelling mistake, right, spelling error, and second one is what, grammar error, grammatical error. Clear? So second one is what, grammatical error. Okay, so this spelling error, it is, how would we know that the spelling error, and how would we know that this is grammatical error? Okay, it is indicated, it underlines, okay, it underlines the text, in red color. Okay, it understands the text in red color. And what is about it, and the context about it is, right, it indicates, it underlines the text in green color, right, not blue, green color. Okay, green color. Clear? Listen to me, man. Okay, so come to your point, and I said that it underlines the text in green color, so you can easily detect these mistakes here. Okay, so steps, how do you remove it? Steps: press F7 function key to remove errors, both errors, right, not only the spelling error, not only the grammatical error, only to remove the errors means both errors. Okay, so spelling error as well as grammatical error, that can be removed using F7 key, or you can say, or very simple, one step is sufficient for it, or if you want write more about it, अगर आप इसके बारे में और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। दूसरा, सेकंड क्या कहता है, just right click of mouse on errorful or erroneous, okay, text, आई मीन जो टेक्स्ट आपका एरर अंडरलाइन शो कर रहा है उसमें क्या करें, राइट क्लिक कर दें माउस का। क्लियर है? एंड सेकेंड स्टेप इज व्हाट, and second step is that select possible options, right, आपको वहां पे लिस्ट ऑफ ऑप्शन दिया जाएगा, आप उसे सेलेक्ट कर लें। बट वन थिंग दैट मस्ट बी रिमेंबर इज दैट
व्हाट इज दैट? हम लोग को काम करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए और बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। वी मस्ट वर्क इन ओके सेंटेंस केस और lower case, right? Or lower case, because in upper case it doesn't work. Okay, अपर केस का मतलब होता है कैपिटल अल्फाबेट में। अगर आपने कैप्स लॉक ऑन कर दिया, राइट, और सारे डॉक्यूमेंटेशन आप किए जा रहे हैं लेकिन सारे के सारे कैपिटल लेटर में लिखे जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर काम नहीं करेगा, वो फंक्शन वर्ड में काम नहीं करेगा, उसको अंडरलाइन नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा उसको। एंड इट इज पॉसिबल दैट the document may have errors because the software is not going to work anymore. Clear? यानी क्या क्या है कि it helps us to rectify our document. ये हमें अपने डॉक्यूमेंट को शुद्ध करने में ये मदद करता है। क्यों? हम सभी आदमी जानते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जब हम करते रहते हैं तो देयर आर possibilities of having two types of errors in a document. किसी भी डॉक्यूमेंट में दो तरह के एरर होने की चांसेस रहती है। क्लियर है? पहला क्या है हमारा? पहला है स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। दूसरा क्या है? दूसरा क्या बताया मैंने? दूसरा मैंने आपको बताया क्या? ओके, दूसरा मैंने आपको बताया क्या कि ये ग्रामेटिकल एरर होता है। और ग्रामेटिकल एरर क्या है भाई? ये ग्रामेटिकल एरर क्या है हमारा? क्लियर है? ग्रामेटिकल एरर क्या है? डू यू नो अबाउट इट? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स? नो? ओके, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होता है हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन, जैसे सपोज आई रोट वी एम स्टूडेंट। क्लियर है? तो सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा, तो ये मेरा ग्रामेटिकल एरर शो करेगा। क्लियर? एनी डाउट मैन? एनी डाउट? क्लियर? अंडरस्टूड अबाउट इट? ओके, नाउ लिसन टू मी अबाउट इट। ओके, तो ये क्या है हमारा? इसका ध्यान रखें, F7 फंक्शन की क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्पेलिंग ग्रामर को ठीक करने के लिए। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते हैं तो माउस का राइट क्लिक करिए, इस पे जो एरनिया टेक्स्ट है जिसमें गलत है, जो अंडरलाइन कर दिया है, उस टेक्स्ट को क्या करें आप? अंडरलाइन करिए। और उस पर राइट क्लिक करने के बाद जो अंडरलाइन टेक्स्ट है उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद जो पॉसिबल ऑप्शन है उसमें जो आपको एप्रोप्रिएट लगता है आप उसे सिलेक्ट कर लें। क्लियर? लेकिन इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि हम लोगों को सेंटेंस केस में काम करना है या नहीं तो लोअर केस में काम करना है। क्लियर? ओके, चलिए सेकंड क्या कहता है भाई? सेकंड आपका है ऑटो करेक्ट। ओके, व्हाट इज ऑटो करेक्ट? I hope this option is very familiar to you. Whenever you are typing some text in your WhatsApp chat, okay, you see that your mobile phone displays some possible words that you are intending to type there. Clear है? जो आप लिखना चाहते हैं उससे संबंधित कुछ पॉसिबल वर्ड्स को भी दिखाता है। अगर आपको वो लगता है कि ये सही है तो आप उस पर जस्ट टैप करिए, वो अपने आप लिखा जाता है, ऑटो करेक्ट। ओके, it automatically suggests possible words for the users. Okay, clear? If we are unable to memorize, right? We are unable to memorize confusing words, then we put it into autocorrect
ऑप्शन। क्लियर। ये क्या होता है, हम लोग अगर चाहते हैं कि ऑटो करेक्ट हम लोग खुद से काम करें, हम लोग कुछ मेमोराइज करना नहीं चाहते हैं, जो हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जैसे मैं पूछूं कि कंट्री चेकोस्लोवाकिया है, उसका स्पेलिंग क्या हो, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ये चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग क्या होता है ना, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को क्या करेंगे हम लोग, ऑटो करेक्ट में डाल देते हैं, ताकि जब कभी भी आप नेक्स्ट टाइम उसे टाइपिंग करने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे चेकोस्लोवाकिया के लिए सी प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली चेकोस्लोवाकिया लिखा जाता है। ठीक है, ये आपके मोबाइल फोन में भी ऑटो करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। इट हेल्प्स, इट हेल्प्स टू improve typing. Clear? It helps to improve typing. Clear है? Okay. And third one is what? Third option is called next. Okay, word count. Clear, man? Third option is what? Word count. Clear? So we are going to learn more about it. And third option is, my third option is word count. Third option is what? Word count. Clear? Okay, listen to me, man. Vivek, Vicky, Jaya, got it? Okay. देखो वर्ड काउंट, वर्ड काउंट क्या है, अभी मैं आपसे एट रैंडमली मैं आपसे पूछ दूं कि आप बताओ, आपने जो अभी कॉपी में जो नोट डाउन किया, आपने जो नोटबुक में लिखा है, उसमें कितनी वर्ड्स हैं? कैन यू टेल मी मैन इमीडिएटली? नो, इट विल टेक सम टाइम टू काउंट इट। ओके, मैंने क्या कहा कि आप इसे नहीं कर पाएंगे, और नहीं करवाने की वजह से क्या है कि आपको समय लग जाएगा। मैं पूछ लूँ कितना लेटर लिखा आपने, नहीं बता सकते। मैं पूछ दूं आपसे कितना लेटर विथ स्पेस लिखा आपने, नहीं बता सकते। ठीक है, तो वर्ड काउंट कहता है क्या कि सर यू डोंट वरी अबाउट इट, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। इट डिस्प्लेज डिटेल, इट डिस्प्लेज डिटेल्ड information about it displays detailed information about the document. Clear? Document, that is total number of letters with and without space, with and without space, comma, lines, comma, paragraphs. Okay, paragraphs, comma, pages, comma. Okay, pages, etc. Written in it, written in it. Okay, it displays detailed information about the document, that is total number of letters with and without space, lines, paragraphs, pages, etc written in it। किसी भी डॉक्यूमेंट में कि मैंने कितना लाइन लिख दिया, कितना पैराग्राफ लिख दिया, कितना वर्ड लिखा, कितना लेटर लिखा, कितना लेटर विथ स्पेस लिखा, लेटर विदाउट स्पेस लिखा, इन सब की काउंटिंग कौन करेगा? इन सब की काउंटिंग करता है वर्ड काउंट। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली। ओके, सो चलिए अब इसका स्टेप लिख लीजिए। इसका स्टेप क्या होता है? स्टेप्स। ओके, प्रेस 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 alt plus T plus W. Okay, alt plus T plus W. Okay, in order to do count. Clear? And you can also write its step also, no problem, man. Okay, its step is what? Press alt plus T plus A. Clear है?
Alt plus T plus A. Clear? So this is all about your word count. Clear hai? So this is the feature of word count. Next one is what? Next one is what? Next one is that font feature. Okay, we are just going to aware about font font feature. Font kya hai? Just I am going to tell you the definition. Its descriptive spelling will be displayed because we have to study separately in our chapter. Okay, so I'm not going to teach you as a feature more and more about it, but just know about it. It is a set of a set of printable characters. It is a set of printable characters displayed on the console. क्लियर है? मैंने क्या कहा कि ये कंसोल पे डिस्प्ले करने वाला हमारा जो कैरेक्टर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फॉन्ट कहते हैं. क्लियर? इसका स्टेप्स क्या है? इसका वेरी सिंपल स्टेप. ओके, प्रेस कंट्रोल प्लस डी, राइट? प्रेस कंट्रोल प्लस डी to do press control plus D to do what? To utilize font feature. Clear? To utilize font feature. Clear? Any doubt, man? Any doubt? No doubt? Okay. Thank you. Have a nice day. But if you are intending to join my online session, then you can call me. You can just call me. Okay. You can just call me for online classes colon. ओके, नो प्रॉब्लम मैन. सभी आदमी अच्छे से पढ़ें, घर पे बैठ के पढ़ें. स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. ओके, थैंक यू. टेक केयर यू ऑल, and also care about the